بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ شہنشاہ شریف الدین نے آج اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی۔ اس نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیل چکی تھی۔ آج وہ ایک راجے کے راجا سے شہنشاہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنا لقب شریف الدین معظم رکھ لیا۔ وہ ایک بہادر اور جنگجو نوجوان تھا، افغان برادری سے تعلق رکھتا تھا، ضد کا پکا، قول کا سچا اور خالص پٹھان مزاج رکھنے والا۔ جو بات ایک بار اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی اسے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ فتح اور کامیابی کے جشن میں ہر طرح کی محافل منعقد ہوئی، سرکاری خزانے سے خوب خرچ کیا گیا اور ہر کسی نے دل کھول کر خوشیاں منائی۔ آج خود شہنشاہ بھی غرور اور سرشاری کی کیفیت میں تھا۔ ایسے میں کنیز نے آ کر سرگوشی کی کہ ملکہ کی طبیعت ناساز ہے۔ شہنشاہ پہلے اپنے امور سے فارغ ہوا، پھر ملکہ کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے ڈرتے ڈرتے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے، ان کے گھر اللہ کی رحمت آئی ہے۔ بیٹی کی خبر سنتے ہی شہنشاہ کا سارا نشہ ختم ہو گیا، چاہے وہ نشہ طاقت کا تھا، دولت کا، فتح کا یا سلطنت کے اضافے کا۔ وہ غصے سے بھر گیا اور دھاڑتے ہوئے بولا، ملکہ مجھے بیٹے چاہیے، بیٹی نہیں۔ اتنی بڑی سلطنت، بے شمار جائیداد اور ایک وسیع راز کا وارث میں کسی بیٹی کو نہیں بنا سکتا۔ وہ حکومت کو کمزور کرے گی اور مجھے دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ نہیں بننے دے گی۔ غصے میں پیر پٹکتے ہوئے وہ جانے لگا، لیکن ملکہ نے ہمت کی اور اسے روک کر التجا کی، بادشاہ سلامت، بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی عطا کردہ رحمت سے منہ نہ موڑے ورنہ اللہ کی ناراضگی مول لیں گے۔ اولاد دینا اللہ کی اختیار میں ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ یاد رکھیں، دولت عورت کے نصیب سے ملتی ہے، جبکہ اولاد مرد کے نصیب پر ہوتی ہے۔ یہ بیٹی بھی آپ کے نصیب سے ہوئی ہے اور اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے اپنائیں اور اس کا حق ادا کریں، اس کی پرورش کریں اور اسے تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں۔ ملکہ کی ان باتوں نے بادشاہ کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ وہ غصے میں آ کر بولا، اگر تمہیں خدا کی رحمت اتنی ہی عزیز ہے تو اپنی بیٹی سمیت یہ رحمت اپنے پاس رکھو۔ میں دوسری شادی کر لوں گا ایسی عورت سے جس کی قسمت میں بیٹے ہوں۔ نکل جاؤ یہاں سے، یہ بیٹی تمہیں مبارک ہو، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ کہہ کر شہنشاہ نے فیصلہ سنا دیا اور ملکہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کئی دن گزر گئے اور ملکہ نے محسوس کیا کہ بادشاہ واقعی بیٹی کی پیدائش سے ناراض ہے۔ بادشاہ کے دل میں اب اس کی کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ دن بیت گئے مگر نہ تو بادشاہ نے خود اپنی بیٹی دیکھنے کی زحمت کی اور نہ ہی کسی کو اس کی خیریت دریافت کرنے بھیجا۔ ملکہ ظاہر میں مضبوط نظر آتی تھی مگر دل ہی دل میں زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کچھ دن اور انتظار کیا کہ شاید بادشاہ کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ اپنی بیٹی کو قبول کر لے۔ اسی دوران منگولوں نے زبردست حملہ کر دیا۔ نتیجتاً ہندوستان کی کافی جائیداد منگولوں کے قبضے میں چلی گئی۔ لاکھوں سپاہی مارے جانے کی سوچنا ملی۔ بادشاہ اس نقصان سے بوکھلایا مگر اپنی ناکامی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کے بجائے ایک بار پھر ملکہ پر برس پڑا۔ وہ گرمناک ہو کر کہنے لگا، دیکھا تم نے، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی میری بدقسمتی شروع ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی فتح حاصل کی تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے، لیکن آج اس کی موجودگی کی نحوست کے سبب آدھی سلطنت اور جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تم اسے لے کر فوراً یہاں سے چلی جاؤ ورنہ زبردستی محل سے نکلوا دیا جائے گا۔ بادشاہ کی دل آزاری کرنے والی باتیں سن کر ملکہ کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ اسے نہ تو محل کی خواہش تھی اور نہ ہی دولت کی، وہ صرف عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی عزت کو اپنے ہاتھ میں سمجھا اور رات کی تاریکی میں ننھی سی شہزادی رضیہ کو لے کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ جاتے وقت اس نے شاہی لباس بھی اتار کر پھینکا تھا۔ پرانے کپڑوں میں ملبوس ملکہ ایک بیل گاڑی پر سوار ہو کر محل چھوڑ گئی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ ملکہ محل سے بہت دور جا چکی ہے، شاید سلطنت کی حدود سے بھی نکل چکی ہو، تو اس نے منگولوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے ایک عظیم فوج تیار کی، جنگ کی تیاریاں شروع کر دی گئی اور جلدی ایک عظیم معرکہ برپا ہوا۔ اس جنگ میں شہنشاہ ہند نے منگولوں کی لاش کے انبار لگا دیے، لاکھوں انسان مارے گئے، خون کی ندیاں بہہ گئی
लेकिन बेशुमार जंगी सामान, असलहा और हथियार हाथ लगे। इसके अलावा माले गनीमत के तौर पर हाथी, ऊंट, बकरियां और घोड़े भी हासिल हुए, जबकि हजारों कैदी पकड़े गए। इन कैदियों में मर्दों की तादाद कम थी, क्योंकि ज्यादातर मर्द जंग में मारे जा चुके थे, जबकि औरतों की तादाद ज्यादा थी। जंग के रखवाले ने मौका देखकर बादशाह के कान में सरगोशी की। बादशाह सलामत, इससे पहले कि कोई इन पर नजर डाले, आप इन कैदी औरतों को अपना बना ले। बादशाह ने हैरत से पूछा, किन औरतों की बात कर रहे हो? जेल के रखवाले ने जवाब दिया, हुजूर, कैदियों में 2 ऐसी लड़कियां हैं जो हुस्न, जवानी और खूबसूरती में बेमिसाल है। उनमें मलका बनने की तमाम सिफात मौजूद है। ये सुनते ही बादशाह चौंक गया और फौरन हुक्म दिया कि उन लड़कियों को एक एक करके उसके सामने पेश कर दिया जाए। पहली कैदी लड़की को हल्के लिबास में बादशाह के दरबार में लाया गया। जैसे ही वो सामने आई, बादशाह की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। शायद उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो बहुत कम उम्र थी, मगर गैर मामूली हुस्न की मालिक थी। शायद वो किसी मंगोल राजा की बेटी हो। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा। बहरहाल दूसरी लड़की को पेश किया गया तो बादशाह की नजरें उस पर जम गई, जैसे वो उन्हें हटाना ही भूल गया हो। जेल के रखवाले ने मौका देखकर कहा, बादशाह सलामत, इन महापैकर सूरतों को देखकर आपके दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मिलती है, बल्कि इनसे महल को भी जीनत बख्शी जा सकती है। अगर आप इन्हें मलका का दर्जा दे दें तो बेहतर होगा। मैंने सुना है कि मंगोल औरतों की औलाद में ज्यादातर बेटे ही पैदा होते हैं। बादशाह को ये बात दिल को लग गई और उसने फौरन दोनों लड़कियों से निकाह की तैयारी का हुक्म दे दिया। एक ही दिन में दोनों लड़कियों से निकाह कर लिया गया। यूं बादशाह ने एक तीर से 2 शिकार किए। फतह का जश्न और शादी का जश्न एक साथ मनाया गया। दूसरी तरफ बैलगाड़ी वाला मलका को लेकर चल रहा था। रास्ते में उसने नरमी से पूछा, बहन, आप कहां जाना चाहती हैं? मलका ने नम आवाज में जवाब दिया, भाई, जहां किस्मत ले जाएगी। फिलहाल अगर मुमकिन हो तो मुझे हिंदुस्तान की सरहद से बाहर पहुंचा दो। बैलगाड़ी वाले ने मलका की रोती हुई आवाज सुनकर उस पर तरस खाया। जब उसकी गोद में नन्ही शहजादी को खेलते देखा तो हमदर्दी से बोला, बहन, फिलहाल मेरे घर चलो, तुम आराम करो, अपना गम हल्का करो, कुछ खाओ पियो। जब कोई काफिला हिंदुस्तान से बाहर जाने वाला होगा तो मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सरहद पार पहुंचा दूंगा। मलका अपनी नन्ही रजिया को लेकर बैलगाड़ी वाले के घर आ गई, लेकिन हर रोज सल्तनत से बाहर जाने की दरखास्त करती रही। आखिरकार एक दिन सौदागरान का एक काफिला अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। बैलगाड़ी वाले ने मलका की ख्वाहिश के मुताबिक इसे और नौमौलूद रजिया को उस काफिले के साथ काबुल भेज दिया। उस काफिले में काबुल के बादशाह का एक रिश्तेदार भी मौजूद था, जो इल्म नजूम और क़ियाफा शनासी में माहिर था। उसने मलका से हमदर्दी का इजहार किया और मौका पाकर चेहरे की लकीरों को गौर से पढ़ा। इसी दौरान बहाने से नन्ही रजिया के हाथों की लकीरें भी देख ली। जैसे ही उसने बच्ची की हथेली पर नजरें दौड़ाई, उसका वहम यकीन में बदल गया। ये माँ और बेटी गैर मामूली किस्मत की मालिक थी। नजूमी का ख्याल था कि मलका जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छुएगी, जबकि नन्ही रजिया के हाथों की लकीरें साफ बता रही थी कि वो मुस्तकबिल में तख्त ताज की मालिक बनेगी। नजूमी ने फौरन काबुल के बादशाह को इन हैरत अंगेज इंकशाफात से आगाह किया। बादशाह के दिल में मलका और नन्ही रजिया से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। जब उसने मलका को देखा तो उसके चेहरे पर जलाल और माथे पर किस्मत के चमकते सितारे देखकर हैरान रह गया। नन्ही रजिया की सूरत भी किसी तौर उससे कम नहीं थी, लेकिन उनके चेहरों पर गुजरी आजमाइशों और बदनसीबी की परछाइयां साफ झलक रही थी। काबुल के बादशाह ने उन दोनों को अपने महल में जगह दे दी और नन्ही रजिया की परवरिश का जिम्मा ले लिया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा और उनकी जिंदगी नई राहों पर चलने लगी। बादशाह हिंदुस्तान की दोनों बीवियों से 4 बेटे पैदा हुए। शायद खुदा उससे बेटी को ठुकरा देने की वजह से नाराज था, लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसे बेटों से नवाजा। 4 साल में 8 जायदादों के वारिस पाकर बादशाह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहजादे नाजो नाम में पल रहे थे और उनकी हर ख्वाहिश, चाहे वो जायज हो या नाजायज, पूरी की जा रही थी। महल के शाही कवानीन के मुताबिक उनकी तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो दी गई। उलूम और फनून सिखाए गए और शाही आदाब से आरास्ता किया गया।
शमशीरी की महारत पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई। हर शहजादे के लिए अलग अलग उस्ताद मुकर्रर किए गए ताकि वो जंगी महारतों में माहिर हो सके। बादशाह चाहता था कि उसके शहजादे इतने काबिल बन जाएं कि वो मुकम्मल हिंदुस्तान और उसके आसपास के इलाकों जैसे अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान पर हमला करके उन्हें ज़ेर कर सके। बेटों की पैदाइश के बाद बादशाह का घमंड आसमान को छूने लगा था। वो खुद को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाला हुक्मरान समझने लगा था। मजीद 14 साल गुजर गए थे और उसके 2 बड़े शहजादे अब 18 साल के हो चुके थे। एक रोज एक वजीर ने बादशाह को इत्तला दी, बादशाह सलामत, दाएं बाजू वाली रियासत के गवर्नर ने बगावत कर दी है और जंग के लिए तैयार है। हमने सुलह की बातचीत की थी ताकि वो खिराज देने पर राजी हो जाए या फर्मा बरदारी कबूल कर ले ताकि उसकी बगावत को माफ कर दिया जाए, लेकिन वो किसी बात पर राजी नहीं हुआ। वजीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर वो गवर्नर बहुत सरकशी पर उतर आया है, ना ही वो खिराज देने पर राजी है और ना ही आपकी फर्मा बरदारी कबूल करता है, इसलिए अब सिर्फ तीसरा रास्ता बाकी है। वजीर की बात सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगूला हो गया और बोला, नमक हराम, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारा मुकाबला करेगा। उस गाजिब के लिए तो मेरा बेटा शहजादा अनीसुर रहमान ही काफी है। जाओ जंग की तैयारी करो और शहजादा अनीसुर रहमान को मेरे हुजूर पेश करो। जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई। 25,000 सिपाहियों का लश्कर तैयार किया गया, जिसमें घुड़सवार, हाथीबान, ऊंट सवार, तोपची और पैदल दस्ते शामिल थे। तमाम सिपाहियों को जदीद असलहे से लेस कर दिया गया। 2 महीने का राशन गधों पर लाद दिया गया ताकि लश्कर को हर तरह से मुस्तैद रखा जा सके। शहजादा अनीसुर रहमान अपने वालिद का हुक्म पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। उसने झुककर अदब के साथ सलाम किया और मुअद्दिबाना तौर पर अर्ज की, जी अब्बा हुजूर, क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा, शहजादे अनीसुर रहमान, तुम्हारे लिए आजमाइश का वक्त आ चुका है। अब वक्त है तुम्हारी ताकत और महारत को आजमाने का। हमारे दाएं बाजू की रियासत के गवर्नर ने नाफरमानी करते हुए खराज देने से इनकार कर दिया है और खुद को रियासत का बादशाह करार दे दिया है। उसने अपने नाम के साथ करीमुल्लाह शाह अकबर का लक़ब इख्तियार कर लिया है। लिहाजा तुम्हें उस नाफरमान करीमुल्लाह को ऐसा सबक सिखाना होगा कि आगे चलकर कोई भी बगावत करने से पहले कांप उठे। तुम्हें अपनी धाक बिठानी है ताकि लोग तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का रोब हमेशा के लिए अपने दिलों में बिठा ले, क्योंकि आगे से मैदान जंग में तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को ही उतरना होगा। बादशाह ने मजीद हुक्म देते हुए कहा, और अपनी फतह और नुसरत के झंडे गाड़ने हैं। जाओ, फौजी लश्कर तैयार है और हाँ, सिपाही सालार आजम को साथ ले जाना, क्योंकि वो इंतहाई तजर्बाकार और हमारा फरमाबरदार है। याद रखो, अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते रहना, चाहे वो कोई भी हो और कैसी भी हो। बादशाह का हुक्म सुनते ही शहजादा अनीसुर रहमान तेजी के साथ दरबार से निकला। एक तेज रफ्तार घोड़े पर सवार हुआ और अपने जंगी लश्कर को लेकर कूच कर गया। उसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द बागी गवर्नर के सर पर पहुंच जाए। लश्कर मुसलसल सफर करता रहा और रात के वक्त उस बागी रियासत की सरहद पर पहुंच गया। बागी गवर्नर को शाही लश्कर की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। हिंदुस्तान में जंगों की रिवायत के मुताबिक रात को जंग का आगाज नहीं किया जाता था और अगर जंग जारी हो तो उसे रोक दिया जाता था। ये अनीसुर रहमान की फौज के लिए अच्छा मौका था कि वो सफर की थकान दूर कर सके। आधा लश्कर आधी रात तक आराम करता रहा, जबकि बाकी पहरा देते रहे। जब एक ग्रुप जागता तो दूसरा सो जाता और यूं सारा लश्कर सुबह तक ताजा दम हो गया। सुबह होते ही दोनों फौजें आमने सामने सफारा हो गई और खून रेज जंग शुरू हो गई। बागी लश्कर 30,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल था, जबकि शाही लश्कर तादाद में कम होने के बावजूद अपनी दहशत से काफी था। बागी फौज के पास असलहा कम होने की वजह से कोई मददगार मौजूद नहीं था। 2 से 3 दिन की खूनी जंग के बाद बागी लश्कर ने हथियार डाल दिए, जबकि उनका गवर्नर जो बागी बादशाह बन बैठा था मारा गया। यूं बागी गवर्नर के जेर इंतजाम रियासत पर शहजादा अनीसुर रहमान ने अपनी फतह का परचम गाड़ दिया। शहजादे अनीसुर रहमान के साथ भेजा गया सिपाही सालार आजम इंतहाई बहादुर, ज़हीन और तजर्बाकार शख्स था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्यों न शहजादे को मशवरा दिया जाए कि वो इस रियासत में कुछ वक्त कयाम करे, क्योंकि वो नौजवान दुनिया की रंगीनियों में दिलचस्पी रखने वाला था। ये मौका उसे मजीद तजर्बा फराहम कर सकता था।
सिपाही सालार आजम ने मौका देखकर शहजादा अनीस रहमान से गुफ्तगू शुरू की। शहजादे हुजूर, ये सूबा बहुत पुरफजा, माली तौर पर मुस्तहकम और हर लिहाज से महफूज है। यहाँ का हुस्न और दिलकशी भी हद से ज्यादा है। क्यों न इसे अपना मस्कन बना लिया जाए, ताकि जंग और जद्दोजहद की मुश्किलात से दूर रहकर सुकून और राहत की जिंदगी गुजारी जाए। जंग के मैदान के लिए आपके भाई काफी हैं। आप यूं समझे कि ये सूबा आपको विरासत में मिला है, गोया ये आपके वालिद की जागीर का हिस्सा है। सिपाही सालार आजम की बातें शहजादे के दिल पर असर करती गई। शहजादा बोला, तुम ठीक कहते हो सिपाही सालार, वाकई इस जंगी जिंदगी में क्या रखा है। इंसान को फितरत और उसकी खूबसूरती से मोहब्बत करनी चाहिए। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया। सिपाही सालार ने बात आगे बढ़ाई। शहजादे साहब, आपके वालिद हुजूर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत रहमदिल इंसान है और औलाद के मामले में वसी ज़र्फ रखते हैं। एक बेटे के ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर आप उनसे हमेशा के लिए ताल्लुक नहीं तोड़ रहे, बस अलग रहकर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सिपाही सालार ने मजीद कहा, हमारे पास 20,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज भी है, जो हमारी हिफाजत के लिए काफी है। जब फौजी अफसरान और सिपाहियों को ये खबर होगी कि उन्हें मराहत तो सिपाही वाली दी जाएगी, लेकिन काम सिर्फ मुहाफिजों वाला लिया जाएगा, तो वो भी खुश हो जाएंगे। यूं सबकी जिंदगी ऐशो आराम में गुजर सकती है और हमेशा के लिए हमारे वफादार बनकर जिंदगी गुजारेंगे। किसी के दिल में बगावत का ख्याल भी नहीं आएगा। सिपाही सालार आजम की चिकनी चुपड़ी बातों ने शहजादे को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दिया। दरअसल सिपाही सालार आजम अपने मकसद के लिए शहजादे का इस्तेमाल करना चाहता था, मगर वो शहजादे को जिंदा और सामने रखना चाहता था, ताकि बादशाह हिंदुस्तान कभी भी अपने सगे बेटे पर लश्कर कशी न करे। बादशाह जितना हो सकेगा नरमी इख्तियार करेगा और इसका फायदा उठाकर सिपाही सालार आजम अपने आप को अस्करी तौर पर मुस्तहकम कर लेगा और साथ ही साथ इस सूबे की आमदनी से खजाना भी भर लेगा, जो बाद में उसके तसर्रुफ में होगा। शहजादे के ज़हनी तौर पर तैयार होने के बाद सिपाही सालार आजम ने उसकी कनीजों में इजाफा कर दिया। वहां हर कम उम्र और खूबसूरत लड़की को शहजादे की कनीजों में शामिल करता रहा। दरअसल सिपाही सालार आजम ने शहजादे को नफ्सियाती तौर पर महल में कैद कर लिया था और उसे दीनों दुनिया के मामलात में मसरूफ रखता और बादशाह हिंदुस्तान से राब्ते में रहता था। उसने शहजादे को खतों के जरिए अपने ख्यालात और मालूमात भी भेजी, जिनमें फतह की खबरें और सूबे के सियासी, माली, समाजी और तिजारती हालात पर तफसील से रोशनी डाली गई। उन खतों में तमाम इंतजामात को नाक़िस करार देकर इस्लाह की बात की गई थी। बादशाह हिंदुस्तान, जो कि शहजादे अनीसुर रहमान की फलाह बहबूद से मुतमईन हो चुका था, को अचानक इत्तला मिली कि मुल्तान के गवर्नर ने बगावत शुरू कर दी है और वो मंगोलों से मिलकर फतूहात के जरिए दारुल हुकूमत तक पहुंचना चाहता है। लिहाजा बादशाह सलामत ने इस बगावत की सरकोबी के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें 50,000 घुड़सवार और उतने ही पैदल दस्ते शामिल थे। इस बार बादशाह ने शहजादा अनीसुर रहमान के हम उम्र दूसरे बेटे मुजीबुर रहमान को हुक्म दिया कि वो मुल्तान की तरफ 1 लाख फौज लेकर जाए। इस लश्कर की सालारी निजामुद्दीन को सौंपी गई, जो कि जंग में अपनी जिंदगी गुजार चुका था। निजामुद्दीन ने फौज को लेकर रवाना किया और मुल्तान से 200 मील दूर दोनों लश्करों का टकराव हुआ, जिसके नतीजे में शदीद लड़ाई हुई और लाशों के ढेर लग गए। निजामुद्दीन ने शहजादा मुजीबुर रहमान को पीछे रखा और फौजी दस्तों को जंग में शरीक किया। 10 दिन की लड़ाई के बाद फैसला कुन मार्का हुआ, जिसमें मंगोलों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि गवर्नर मुल्तान ने इसी शर्त पर मंगोलों को बगावत में शामिल किया था कि वो अगले मोर्चों पर लड़ेंगे, जिसका नतीजा उनकी हलाकत की सूरत में निकला। गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी फौज के हौसले जवाब दे गए, जबकि मंगोल अपनी जान बचाकर भाग गए। इस मुआरके के नतीजे में एक बहुत बड़ा सूबा शहजादा मुजीबुर रहमान के कब्जे में आ गया। ये भी वही चाल थी जो शहजादा अनीसुर रहमान के साथ सालार निजामुद्दीन ने खेली थी। निजामुद्दीन ने शहजादा मुजीबुर रहमान को बाप की तरफ से बताया कि वो नौजवान है और अभी लड़ाई झगड़ों के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दुनिया की रंगीनियों में मशगूल होना चाहता है। निजामुद्दीन ने बज़ाहिर शहजादा मुजीबुर रहमान को गवर्नर बनाने का ऐलान किया, लेकिन हकीकत में वो खुद ही बादशाह और गवर्नर था।
उसने शहजादा मुजीबुर रहमान की खुफिया शादी करवा दी और वो शबाब, हुस्न और इश्क के चक्कर में पड़ गया। निजामुद्दीन ने एक और चाल ये भी की कि अपनी बेटी को शहजादे के करीब जाने का इशारा दिया। उसकी बेटी अपने हुस्न और शबाब में बेमिसाल थी, जिसका फायदा उठाते हुए निजामुद्दीन ने शहजादे को अपने काबू में कर लिया। शहजादा बहुत जल्द निजामुद्दीन की चालाकियों के दाम में आ गया और अपनी मोहब्बत की वजह से उसे अपनी मलका बना बैठा। इस तरह वो अपने वालिद बादशाह हिंदुस्तान की जायदाद से अपना हिस्सा लेकर अलग हो गया। 18 साल के बाद रजिया न सिर्फ जवान हो चुकी थी बल्कि फनून हरब में भी महारत हासिल कर चुकी थी। उसमें जंगजू बादशाह की खूबियां सरायत कर गई थी और उसमें उसी बादशाह का खून भी गर्म था। काबुल के बादशाह ने उसे इतनी ताकतवर और बेमिसाल जंगजू बना दिया था कि वो शमशीर जनी में अपना सानी नहीं रखती थी। काबुल के बादशाह को खुद हैरानी थी कि उसकी नाजुक कलाइयां कैसे इतनी भारी तलवार का वजन उठा लेती हैं और फिर सिर्फ वजन नहीं उठाती बल्कि इंतहाई महारत से तलवार भी चलाती थी। 18 साल की उम्र में काबुल के बादशाह के हुक्म पर बड़े बड़े सालारे आजमों ने उसे घुड़सवारी, शमशीर जनी, तीर अंदाजी और जंग के फनून सिखा दिए। उसने हर एक फन में न सिर्फ महारत हासिल की बल्कि अपने अंदर एक बेमिसाल जंगजू की सिफात भी पैदा कर ली। रजिया की गैर मामूली सलाहियतों ने न सिर्फ काबुल के बादशाह को हैरान कुन अंदाज में मुतासिर किया बल्कि उसके दुश्मन भी उसकी जंगी महारत के कायल हो गए। बादशाह ने अपना भेस बदल रखा था, इसलिए किसी ने उसके इरादों को नहीं रोका, मगर जब दुश्मन का लश्कर अचानक हमला कर गया तो दारुल हुकूमत में कोई मुजाहिमत नहीं हुई और वो आसानी से कब्जा कर बैठा। जब खुरासानियों को पता चला कि बादशाह हिंदुस्तान जान बचाकर अफगानिस्तान की तरफ भाग रहा है तो खुरासानी सालार आजम ने एक जुर्रतमंद दस्ते को बादशाह के पीछे रवाना किया। बादशाह भूखा प्यासा मुस्तमर कई दिनों तक सफर करता रहा और आखिरकार अफगानिस्तान पहुंच गया। वहां की फौज ने उसे अजनबी समझकर गिरफ्तार कर लिया और काबुल के बादशाह के सामने पेश कर दिया। जब शाह हिंदुस्तान काबुल के बादशाह के सामने आया तो मलका और रजिया पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी। मलका ने रजिया के कान में सरगोशी की, ये हिंदुस्तान का जालिम बादशाह है और तुम बदनसीब का बाप जिसने हमें तुम्हारी पैदाइश की सजा में अपने महल से निकाल दिया था और 20 साल गुजर जाने के बावजूद कभी हमें याद तक नहीं किया। बेटी, ये वही शख्स है जिसके बारे में मैं तुझे हमेशा बताती रहती हूँ। रजिया के दिल में पहली बार बाप की शफकत जागती है, लेकिन उसने खुद को जब्त किया। फिर वो पर्दे से बाहर निकली और कहा, तो आप शहनशाह शरीफुद्दीन हैं, शाह हिंदुस्तान। आपने ताजो तख्त किस दिल से छोड़ा? शाह हिंदुस्तान ने उसकी बात सुनी और कहा, बेटी, ये सब किस्मत की सितम जरीफी है। बेटी का लफ्ज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रजिया ने तल्ख लहजे में कहा, शहनशाह शरीफुद्दीन, आप तो बेटी को सहमत समझते हैं, आपके मुंह से बेटी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेती हूँ, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। शाह हिंदुस्तान ने हैरानी से पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि मैं अपनी बेटी को सहमत समझता हूँ? ये बात तो सिर्फ मेरी बीवी मलका के अलावा किसी को मालूम नहीं। मलका का नाम सुनते ही वो पर्दे के पीछे से नमूदार हो गई और अब वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कहा, हाँ सरताज, मैं तुम्हारी मलका हूँ और ये वही बदनसीब लड़की है जिसकी पैदाइश की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बेटी का मुजरिम हूँ। मलका ने शौहर के हाथ अपने पैरों से उठाकर शाह हिंदुस्तान को मुआफ कर दिया। रजिया भी बाप के गले से लिपटकर बेतहाशा रोने लगी। अचानक मंगोलों की बेगाना आवाज सुनकर रजिया बाहर निकली और कहा, शाह हिंद को हमारे हवाले कर दो, ये हमारा पुराना दुश्मन है। एक हुजूम बिला खीश था, सब हथियारों से लैस थे। रजिया ने ऐलान किया, मैं तुम्हारी सालार आजम हूँ, मैंने शाह हिंद को पनाह दी है। तुम्हें राजपाट चाहिए तो आज मेरा साथ दो, हम मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि फतह की सूरत में आधा हिंदुस्तान तुम्हारा होगा। मंगोल जंगजू कौम थी और इख्तिदार की भूखी। सालार आजम ने रजिया की सरबराही में नाकाबिले बयान हमले किए। अभी खुरासानियों के कदम जम भी ना पाए थे कि रजिया की ताकत ने उन्हें उखाड़ फेंका और फिर दिल्ली के दरबार पर उसके वालिद शहनशाह शरीफुद्दीन की बादशाही कायम हो गई। मौत को जिंदगी में और हार को जीत में तब्दील होते देखकर शाह हिंद ने खुदा के हुजूर सर झुका दिया और दुआगू हुआ, ऐ खुदा, वाकई बेटी तेरी रहमत है। अगर आज तेरी रहमत मेरे साथ न होती तो ये सब कुछ मुमकिन न था।
تو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔